Students, exercise 3.3 and this is the chapter understanding quadrilateral. हमने 3.2 तक कर लिया है, 3.3 कर रहे हैं हम लोग. 3.3 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमें कुछ एक्सप्लेनेशन जानना होगा. मींस this exercise is related to the properties of quadrilateral, special kind of quadrilateral like trapezium, like kite, like parallelogram, rhombus. These are the special kinds of quadrilateral, and this exercise is related to that. So first we know the properties of these quadrilateral, then we will continue exercise 3.3. Properties I am writing here and explaining. First is trapezium. You know trapezium? Yes. Trapezium diagram is this. This and these are parallel sides. So trapezium is a quadrilateral having one pair of opposite sides are parallel. These two are the opposite sides. ये दोनों opposite side. पैरेललोग्राम का ये दोनों अपोजिट साइड, सॉरी ट्रेपेजियम का ये अपोजिट साइड है, ये दोनों अपोजिट है. इसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं. तो यहां लिखेंगे प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज फर्स्ट इज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड are parallel. Next, second is this and this are supplementary. Means there are two pairs of adjacent angles are supplementary. Yes. So these and these are supplementary. Similarly, these and these are supplementary. तो दो पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं. थर्ड इज इफ नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, then it is known as isosceles trapezium. If non-parallel sides are equal, means suppose ये और ये इक्वल, तो इसको हम बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. देन अगर ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, ये एंगल और ये एंगल इक्वल. ओके, तो एंगल्स ऑन द पैरेलल साइड, बोथ द एंगल पैरेलल साइड, ये और ये का जो पैरेलल साइड है इसका ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा. इसी तरह ये एंगल और ये एंगल इक्वल. ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है. एंड इन फोर्थ इज इन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम two pairs of adjacent angles are equal.
नेक्स्ट, ये ट्रेपेजियम हो गया बेटा। नेक्स्ट इज काइट। काइट, काइट का डायग्राम ऐसा। यस, ये दोनों इक्वल होते हैं इसमें। This way, this and these are equal angles. Okay, so properties are here. First property, there are two pairs of adjacent sides are equal, means these and these are equal, these and these are equal. There are two pairs of adjacent sides are equal. Next, one pair of adjacent angle, one pair of opposite angles are equal. Third is this diagonal bisect this diagonal. So one diagonal bisect the other. One diagonal bisects other, but not each other. Finish. Next one is parallelogram. ये पैरेललोग्राम है बेटा। Properties are here. First property, both the pairs of opposite sides are equal. Sorry, are parallel. Equal भी होता है तो दोनों लिख देते हैं, parallel and equal. Next, yes, both the pairs of opposite angles are equal. Third, pair of adjacent angles, yeah, all the pairs of adjacent angles, simply adjacent angle are supplementary. And last one is both the diagonals bisect each other.
मतलब यहाँ क्या है, देखो बेटा, हमने फर्स्ट लिखा बोथ द पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, मतलब ये और ये दोनों पैरेलल और इक्वल होते हैं। दिस एंड दिस आर पैरेलल एंड इक्वल। सिमिलरली these angles and these are the equal angles. These and these are equal angles. एंड यहां आते हैं ये और ये इक्वल होगा, ये और ये मीन्स बोथ द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसके अलावा हमने लिखा है एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मीन्स एंगल ए प्लस एंगल डी इज 180, एंगल डी प्लस एंगल सी इज 180, एंगल सी प्लस एंगल बी इज 180 and angle A plus B is also 180. So these are the properties of parallelogram. प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम हमेशा आपके ब्रेन में रहना चाहिए, क्योंकि अभी से लेके 10th तक इसकी नीड हमेशा होती रहेगी। यू मस्ट कीप द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल दीज quadrilateral, special kinds of quadrilaterals in your brain so that you will get the sums very easy. दिस ज्योमेट्री चैप्टर आपके बहुत इजी हो जाएंगे 8, 9, 10 में, तो इसको अगर आप ब्रेन में रखते हो तो। फोर्थ जो हमारा है नेक्स्ट स्पेशल काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज ट्रेपेजियम हो गया, हमने काइट कर लिया, हमने पैरेललोग्राम कर लिया, अब आते हैं रोम्बस। रोम्बस 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 की जो प्रॉपर्टीज होती है, ऑल साइड्स इक्वल। नेक्स्ट opposite angles are equal. Adjacent angles are supplementary, similar to parallelogram. Supplementary. Next, both the diagonals bisect each other at right angle. मतलब ये जो एंगल है बेटा, ये 90 डिग्री का होता है, और उसी तरह से जैसा आपने अभी बताया था, ये दोनों पैरेलल और इक्वल होते हैं। This and this are parallel and equal. This equals to this equals to this angle and this angle are equal. This and these are equal angles. Both the diagonals bisect each other at 90 degrees. Both the diagonals bisect each other at 90 degrees. Finish. Next is a square, which is also a special kind of quadrilateral. ये स्क्वायर है बेटा, इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, बहुत पहले भी, छोटे स्टैंडर्ड से ही हम लोग इसको पढ़ते रहे हैं। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो नई आपको लगेगी, रिमेनिंग सब कुछ आप पहले से जानते हैं। प्रॉपर्टीज आर फर्स्ट, ऑल साइड्स आर इक्वल, सिमिलर टू rhombus. Second is all angles are equal.
all angles are equal and they are (90°). Third is both the diagonals are equal. And bisect each other at 90°. Finish. Next is rectangle. Opposite sides are equal. Both the diagonals are equal. हाँ, तो इसकी प्रॉपर्टीज में लिख रहा हूं बेटा. Opposite sides are equal. Each angle is of 90°. मीन्स सभी एंगल इक्वल होते हैं और 90° के. थर्ड इज both the diagonals are equal and bisect each other. Bisect each other. Opposite sides equal. So these and these are equal. These and these are equal. Both the diagonals are also equal. तभी एंगल 90° के होते हैं और दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. तो इतने स्पेशल काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल होते हैं जो हमें पढ़ना है और आई थिंक मैंने लगभग सब बता ही दिया है. स्क्वायर हो गए, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम एंड काइट. यस, ऑल आर फिनिश्ड. अभी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे 3.3 उसमें हमें इसी प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है बेटा. अगर इस प्रॉपर्टी को आपने अच्छे से समझ लिया, 2-3 टाइम्स पढ़िएगा, समझ में आ जाए तो आप विदाउट गेटिंग एनी हेल्प यू कैन डू द सम्स, ऑल सम्स ऑफ एक्सरसाइज 3.3. बट हम तो बता ही रहे हैं, तो आप ट्राई कीजिएगा खुद से भी करने का और मेरा सपोर्ट मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको और इजी हो जाएगा. ओके, हेलो स्टूडेंट्स, today we are going to start exercise 3.3 for standard 8. This is chapter 3, understanding quadrilateral. 3.1 3.2 के वीडियो अपलोडेड हैं और आई होप कि आप में से बहुत सारे बच्चों ने इसे देखा भी होगा. देखने के बाद अगर कोई डाउट आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें कमेंट कर सकते हैं. यू विल गेट द प्रॉपर आंसर फ्रॉम माय साइड. एंड अगर आपने वीडियो ना देखा हो तो हम कोशिश करेंगे कि डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दें सो दैट कि आप उसको देख सकें. सर्टेनली जब आप देखोगे तो मुझे नहीं लगता कि किसी ट्यूशन क्लासेस की आपको जरूरत होगी, क्योंकि मैं आपको हर तरह के सपोर्ट के लिए रेडी हूं, तो क्यों अननेसेसरी उसमें इन्वेस्टमेंट करने का. तो आप वीडियो को देखिए और अगर वीडियो देखने के बाद लगे कि किसी और टॉपिक पर भी हमें वीडियो चाहिए, कोई और एक्सरसाइज, कोई और चैप्टर, तो आप वो भी हमें मेंशन कर सकते हैं. यू विल गेट प्रॉपर आंसर फ्रॉम माय साइड, प्रॉपर सपोर्ट फ्रॉम माय साइड. ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 3.3 नाउ.
diagram is here given. This is diagram of question number 1, and question is given a parallelogram ABCD. Complete each statement along with the definition or property used. तो इसमें डेफिनेशन और प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमें इसको सॉल्व करना, ठीक है। तो डेफिनेशन और प्रॉपर्टी है हमारा कि बोथ द इन पैरेललोग्राम बोथ द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। आपको मैं आई थिंक मैं कोशिश करूंगा इसके पहले मैं प्रॉपर्टीज का ही वीडियो अपलोड कर दूं, सो दैट की प्रॉपर्टीज देखने के बाद इसको इजी गोइंग में आप खुद भी सॉल्व कर सको, या जब मैं करूंगा तो आप पहले आपको आइडिया मिल जाए कि इसका आंसर ये होना चाहिए और मेरे से आप वेरीफाई कर लो मेरे आंसर के बाद। तो फिल इन द ब्लैंक्स है ये। फर्स्ट, AD इक्वल्स टू डैश। AD इक्वल्स टू क्या हो, देखो बेटा AD, because according to the property of parallelogram opposite sides are equal, तो AD और BC इक्वल होगा, तो हमने यहां लिख देना है BC। सेकेंड इज एंगल DCB, एंगल DCB इक्वल्स टू, एंगल DCB कहां है, देखिए बेटा एंगल DCB मींस दिस एंगल, तो according to the property of parallelogram opposite angles are equal, so angle DCB equals to angle DAB, angle DAB। फिल इन द ब्लैंक्स का रूल है कि जो आप फिलअप करते हो उसके नीचे अंडरलाइन कर देना, सो दैट ये पता चले कि दिस इज फिल्ड। नेक्स्ट OC इक्वल्स टू OC is this, and according to the property of parallelogram both the diagonals bisect each other, means this diagonal bisecting this, AC is bisected by BD and point of bisection is this, so OC is equals to OA, we should write here OA। Question number 4, measurement of angle DAB plus measurement of angle CDA is equals to dash, measurement of angle DAB B means this angle, and CDA means this angle. Your question is asking what is the sum of this and these angles, and according to the property of parallelogram adjacent angles are supplementary, and we are getting here these and these are adjacent angles, so they must be supplementary, and so their sum would be 180. Okay, yes, question number 2 first, this is a parallelogram, consider the following parallelogram, find the values of unknown x, y, z. This is 100 degree, this is x, this is y and this is z, और हमें सारे एंगल्स की वैल्यू फाइंड करना, अननोन एंगल की। मैंने जो प्रॉपर्टी बताई है उसमें बताया है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल डी फाइंड पहले हम करते हैं, एंगल डी इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू 100 डिग्री, ब्रैकेट में लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, इस तरह से हम पैरेललोग्राम की साइन यूज कर सकते हैं। उसके बाद एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, तो एक्स या हम लिख सकते हैं बी, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180। रीजन एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री
ओके, तो एंगल बी तो हमें पता है 100 प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180। एंगल सी की वैल्यू है x, तो हम यहां लिख देंगे 100 प्लस x इक्वल्स टू 180। नाउ x इक्वल्स टू 180 माइनस 100, x equals to 80. We got the value of x. Now z, y और z दोनों सप्लीमेंट्री होगा, तो हम लिखेंगे यहाँ एंगल a प्लस एंगल d इक्वल्स टू 180। रीजन वही देंगे, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। एंगल ए की जगह हम लिखेंगे z प्लस y इक्वल टू 180। z की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, बट y की वैल्यू तो मालूम है, हमने फाइंड किया था यहाँ पे। x यहाँ फाइंड किया। अच्छा, ये मैंने लिखा ही नहीं एक्चुअली। एंगल d इक्वल्स टू एंगल b एंड देयरफॉर वी मे राइट y इक्वल्स टू 100, क्योंकि d की वैल्यू y, तो z प्लस y की जगह हम लिख देंगे 100 इक्वल्स टू 180 एंड z इक्वल्स टू 180 माइनस 100, z इक्वल्स टू 80। तो मिल गया बेटा, x की वैल्यू 80, y की वैल्यू 100 एंड z की वैल्यू 80। बस, फिनिश। Question number second of 2. Diagram is here. You are observing. This is a parallelogram actually. And our question is saying find the value of x, y and z. तो कैसे करेंगे बेटा, वो देखिए 50 और x दोनों एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है, तो दोनों का सम 180 डिग्री होगा। हमने आपको जो बताया हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम्स, सारे प्रॉपर्टीज मैंने बताए हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, तो ये दोनों सप्लीमेंट्री होगा। तो यहां लिखेंगे x प्लस 50 इज इक्वल्स टू 180 और ब्रैकेट में लिख देंगे एडजेसेंट एंगल्स of parallelogram are supplementary. Okay, then x equals to 180 minus 50 and then x equals to 130. We got the value of x. Now y. अब हमने जो प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम बताया है बेटा, उसमें हमने ये बताया है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो मतलब x एंड y आर हियर अपोजिट एंगल्स, सो दे मस्ट बी इक्वल। सो अब यहां लिखेंगे y इक्वल्स टू x एंड देयरफॉर y इक्वल्स टू दैट इज 130। अब इस जगह हमने जहां लिखा है y इक्वल्स टू x, सर्टेनली वी हैव टू राइट why these two angles are equal, ये आपको लिखना पड़ेगा। ऐसे आपने लिख दिया y equals to x या x equals to y, that is not enough. You must write here what on which basis you are saying y and x are equal. तो यहाँ equal क्यों है, क्योंकि opposite angles of parallelogram are equal. And that is the reason we can say x and y are equal here. So y की वैल्यू भी मिल गई हमें। अब हमें चाहिए z। तो आप एक बात का ध्यान रखो बेटा, वो x और z इक्वल है। रीजन बिहाइंड इट, देखिए इस तरह की दो लाइन है, these two are parallel lines and this is a transversal। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल। क्यों इक्वल होता है,
these two angles are corresponding angles, so they must be equal, and so we can write z equals to x. Again, region behind it, corresponding angles. Corresponding angles. आई थिंक आप लोग जानते होंगे, लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर में ये पढ़ना था, तो शायद आपने पढ़ लिया होगा, मेरे वीडियो में भी देख लिया होगा, नहीं तो मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा बेटा, आप उसको देख लीजिएगा. z equals to x and therefore we can write z equals to again 130. So y equals to 130, x equals to 130 and z equals to 130. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. सेकेंड का थर्ड क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं. डायग्राम ये हमने ड्रॉ किया है. डायग्राम बहुत परफेक्ट नहीं है बेटा, बट समझने के लिए इनफ है. इस डायग्राम में देखिए पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम के बोथ द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं, बट यहाँ ये एंगल 90 डिग्री दिख रहा है, तो x की वैल्यू भी 90 होगी. रीजन बिहाइंड इट, x इक्वल्स टू 90 कैसे हम बोलेंगे, इक्वल्स टू 90. और इन दोनों एंगल में जो रिलेशन है बेटा वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल. वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो x की वैल्यू मिल गई. ओके, नाउ सी दिस एंड इसको हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं सो दैट आपको पता चले. This and these are parallel lines and this is the transversal. ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है. तो z और y इक्वल, तो ये एंगल हमारा 90 हो गया. हम पहले इस ट्राइंगल की बात करते हैं. दिस इज द ट्राइंगल वी हैव हियर. दिस हम नेमिंग कर देता हूं मैं सो दैट कि आपको ज्यादा क्लियर हो. a और इसको o ले लेते हैं. AOD इज अ ट्राइंगल in which this angle is 30 degree, this is x, which we got 90 degree, then we can find out y. So यहां लिख देता हूं मैं, in triangle AOD, एंगल छोड़ो, x plus y plus 30 is equals to 180. रीजन बिहाइंड इट, फिर से रीजन देना होगा. मैं हमेशा बोलता हूं कि ऐसे ही आप लिख दोगे उसकी वैल्यू नहीं है. You must write the region behind it. ASP of triangle. ASP of triangle means angle sum property of triangle. What angle sum property says? Angle sum property says sum of all three angles of a triangle is always 180 degree. And this is the reason we have written x plus y plus 30 equals to 180. X we got that is 90. Plus y plus 30 equals to 180. Y plus 120 equals to 180. Now y equals to 180 minus 120. And finally y equals to 60 degree. So हम लोग y की वैल्यू भी मिल गई. और अभी अभी मैंने बताया y and z are equal because they are alternate interior angles. इस तरह देखो बेटा, एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है, दोनों पैरेलल है. सॉरी, इधर है, एक लाइन इधर है और दिस एंड दिस आर पैरेलल लाइन, दिस इज अ ट्रांसवर्सल. तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं. रीजन बिहाइंड इट, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो यहां हम लिखेंगे z इक्वल्स टू y. ऑल्टरनेट, आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हो बेटा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. AI A लिखते हैं बहुत लोग, वैसे पूरा लिखिएगा तो बहुत अच्छी बात है. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड देयरफॉर z इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ y we got is 60 and so we got x की वैल्यू, x equals to 90, y equals to 60 and z equals to 60. Finish. Next question is question number 4. Diagram is here.
you are observing in this diagram, this is a parallelogram. One angle is given 80 degree, remaining x, y and z we have to find out. तो 80 और z इक्वल होगा. अभी हमने जो क्वेश्चन किए हैं वो शायद मेरे ब्रेन, मुझे लग रहा है कि आपके ब्रेन में आ गया होगा बेटा. 80 and z are equal, so very frequently we can write z equals to 80 degree. Reason behind it, corresponding angles, these two are corresponding. ऐसा है बेटा, देख लीजिए ऐसा, ये एंगल और ये एंगल corresponding angles होते हैं. So z equals to 80 and you may write corresponding angles. Okay, next one, since it is a parallelogram, so opposite angles are equal, तो 80 और y equal होगा. So you may write here y equals to 80. Reason behind it, opposite angles of parallelogram. And since it is a parallelogram, so adjacent angles are supplementary. According to the properties of parallelogram, you know adjacent angles of a parallelogram are supplementary, means दोनों का सम 180 होता है. तो x plus 80 equals to 180. You may write x equals to 180 minus 80. You may write x equals to 100. So you got the value of z, value of y, and value of x. Finish. Next question is fifth. Diagram is here. You can observe the diagram. But मैंने हर क्वेश्चन में बोला है हैंडमेड डायग्राम है बेटा, तो ये उतना परफेक्ट नहीं होता, बट आपके समझने के लिए. और एग्जाम में भी ऐसा ही करना है. ऐसा नहीं एग्जाम में स्केल और पेंसिल लेके करना है, ऐसा नहीं. डायग्राम सर्टेनली आपको ड्रॉ करना है, बट दैट वुड बी रफ डायग्राम बस. तो ये डायग्राम है एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दिस इज पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, अभी मैंने बार बार बोला है. तो दिस एंड दिस आर इक्वल. y की वैल्यू डायरेक्टली आपको मिल जाएगी. सो y equals to 112. Reason behind it, opposite angles of parallelogram. Next one, adjacent angles are supplementary, so this plus this would be 180 degree. So z plus 40 plus 112 equals to 180 degree. Reason behind it, adjacent angles of parallelogram. तो ये सप्लीमेंट्री होते हैं, इसीलिए हमने 180 लिखा है. नाउ यू कैन राइट z इक्वल्स टू, और z प्लस वन मोर स्टेप 251, 152 equals to 180, and z equals to 180 minus 152, and we may write z equals to, after subtracting, 28 degree. So z is equals to 28 degree. Now we have to get the value of x. अब देखो बेटा यहां this and these are parallel lines. Properties of parallelogram show opposite sides are parallel and equal. तो ये parallel भी है और equal भी. हमें equal की भी need नहीं है, हमें parallel की need है. So this and these are parallel sides, and this is a transversal. X and Z are alternate interior angles, so they must be equal. So you can write x equals to z. Reason behind it, alternate interior angles. हमने शॉर्ट में लिखा है, याद रखिएगा बेटा, आपने एग्जाम में पूरा लिखना है. alternate interior angles, and therefore x equals to value of z we got here, that is 28. बस इस तरह से हमारा सेकेंड क्वेश्चन फिनिश हो गया है बेटा. और मुझे लगता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम जो हमने बताया था उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हमने यहाँ किया है और आपने समझ भी लिया होगा. बट
Still, if you have any doubt, you can come on comment box and comment. You will get proper response from my side. Okay. Next question is question number 3. First is angle D plus B equals to 180. Angle D plus angle B equals to 180. Your question is asking, can a quadrilateral ABCD be a parallelogram if angle D plus B equals to 180? अब देखिए बेटा, एंगल D प्लस B इक्वल्स टू 180 का मतलब है अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. योर क्वेश्चन इज सेइंग दिस. तो ये पॉसिबल भी है और पॉसिबल नहीं भी है. सो यहां लिख देंगे कैन बी और कैन नॉट बी. ठीक है. हमारे पास जो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम है उसमें यह है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो यहां अपोजिट एंगल्स, बट बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम वी हैव हियर. ये लिख रहा है कि दोनों अब मतलब वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. अगर वन पेयर है तो दूसरा पेयर भी होगा, सर्टेनली होगा बेटा. लेकिन यह पैरेललोग्राम हो जाए क्योंकि दूसरा पेयर भी ऐसा ही हो. मान लो ये 90 ये 90 है और दूसरा पेयर भी 90 90 है तो वो पैरेललोग्राम होगा. बट अगर एंगल बी हो जाए 100 डिग्री और डी हो जाए 80 डिग्री और तो भी दोनों का सम 180 होगा, देन दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम. ठीक है. सो वी हैव रिटन हियर कैन बी और कैन नॉट बी. हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. सेकेंड इज हियर AB equals to DC equals to 8 centimeter, AD equals to 4 centimeter and BC equals to 4.4 centimeter. See here again we will come on the properties of parallelogram. According to the properties of parallelogram, we have opposite sides are equal. AB and CD are opposite sides and both are of length 8 centimeter, so it is correct. No problem. But here AD and BC are also opposite sides. They must be equal according to the properties of parallelogram. But here your question is saying AD length of AD is 4 centimeter and length of BC is 4.4 centimeter. It means it cannot be a parallelogram. So no, you will write here no, it is not a parallelogram. Okay. Next, question number 3. Question number 3 is angle A equals to 70 degree and angle C equals to 65 degree. See here बेटा, फिर से हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को रिकॉल करते हैं. तो हमने बताया था कि बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. हियर एंगल A एंड एंगल C आर अपोजिट एंगल्स. तो रीजन भी आपके ब्रेन में रहना चाहिए. मैं बोल रहा हूं रीजन के साथ. हमें यहां आंसर ओनली वी आर राइटिंग आंसर, बट आई एम एक्सप्लेनिंग द रीजन ऑल्सो कि क्यों, व्हाई नॉट. तो याद रखिएगा उसको. हियर एंगल A इक्वल्स टू 70 डिग्री, एंगल C इक्वल्स टू 65 डिग्री. और प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा हुआ है कि बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो एंगल A और एंगल C अपोजिट एंगल्स होते हैं और दोनों इक्वल होनी चाहिए अगर ये पैरेललोग्राम है तो. बट हियर angle A is 70 degree only and angle C is 65 degree only. So we must write here no, it is not a parallelogram. So you will write here no, it is not a parallelogram.
ध्यान में रखिएगा बेटा, रीजन हमने सबका बताया है, लिखा नहीं है, रीजन आपके ब्रेन में रखना चाहिए। बट सपोज ये वीडियो चला के आप अगर सम करना चाहते हो तो जो मैं रीजन बोल रहा हूं आप लिख दीजिएगा, सो दैट कि आपको याद रहे और बार बार वीडियो ओपन करके देखने की नौबत ना आए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. Draw a rough figure of a quadrilateral that is not a parallelogram but has exactly two opposite angles of equal measure. अब एक रफ स्केच हमने ड्रॉ करना है जो एक्चुअली पैरेललोग्राम नहीं है, बट उसके वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इक्वल। दोनों पेयर नहीं इक्वल, अगर दोनों पेयर इक्वल होगा तो पैरेललोग्राम ही बन जाएगा बेटा। तो यहां वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, पहले ड्रॉ करता हूं फिर आपको पता चल जाएगा जो हमने ड्रॉ किया क्या। यस, थोड़ा परफेक्ट नहीं है। See here, A, B, C and D. This is a quadrilateral. Can you say the name of quadrilateral? जिस बच्चे को पता हो गया होगा आप कमेंट करके बताइए ये कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, इसमें ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। आपका क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल बट दिस इज नॉट, दिस एंगल एंड दिस एंगल आर नॉट इक्वल, ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, ये है काइट, दिस इज काइट इन विच one pair of opposite angles are equal, another pair may be equal, may not be equal। अगर इक्वल है तो भी ऐसा नहीं कि अगर ये इक्वल है तो हम इसको काइट नहीं बोलेंगे, बोलेंगे, बट नॉर्मली काइट में हमें कंडीशन जो दिया हुआ है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स शुड बी इक्वल। अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इक्वल है तो हम उसे काइट बोलेंगे, और अगर दोनों पेयर है तो भी कोई बात नहीं। मतलब कि अगर मैं इसको ड्रॉ कर दूं ट्रेपेजियम, सॉरी ट्रेपेजियम नहीं, रोम्बस, तो ये रोम्बस भी काइट है, अ काइंड ऑफ काइट, जिसके दो बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, बट हमने चाहिए वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इक्वल बस। सो दिस इज काइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. The measure of two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 3:2. Find the measure of each of the angles of the parallelogram. ठीक है बेटा, एक इसमें डायग्राम करना होगा, तो मैं पहले डायग्राम करता हूं। यस, एडजेसेंट एंगल, दिस एंड दिस आर एडजेसेंट एंगल, ए बी सी एंड डी। ये एडजेसेंट एंगल है ए एंड बी, अब उसका रेशियो है बेटा 3:2। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 3x और इसको 2x लेट कर लेते हैं। सर्टेनली इन पैरेललोग्राम both the pairs of opposite angles are equal, so if this is 3x this must be 3x, and if it is 2x this must be 2x. Understood? Now यहां लिखेंगे हम लोग let constant equals to x, therefore angle 1 equals to 3x, angle 2 equals to 2x, angle 1 plus angle 2 equals to 180। और रीजन देना होगा यहां एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। आप इसमें पूरा लिखिएगा एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, मैंने इतना ही लिखा, और इतना लिखने का पर भी काम चल जाता है क्योंकि उनको पता हो जाता है टीचर को कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम बच्चों को मालूम है और उसका 180 दिया है। इसका मतलब बच्चों को ये मालूम है कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम सप्लीमेंट्री होते हैं, बच्चों को ये पता है, इसलिए वो पूरा इतना भी लिख देते हैं हम लोग तो काम चल जाता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल पूरा लिखना चाहिए, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, इतना। चलिए एंगल 1 है हमारे पास 3x, जो कि यहां हमने लिखा हुआ है,
3x and angle 2 is 2x equals to 180. 5x equals to 180. x equals to 180 divided by 5 and x equals to, इसको डिवाइड करेंगे बेटा, 5 3 जा 15 एंड 5 6 जा, x की वैल्यू आ गई 36। अब हमने ऑल 4 एंगल्स को बताना है कि क्या क्या होगा। तो लिखेंगे एंगल 1 इक्वल्स टू, हमारा एंगल 1 था 3x, दैट इज 3 इंटू 36 एंड दैट इज 108 डिग्री। एंगल 2 इक्वल्स टू 2x, that is 2 into 36 and that would be 72 degree. Angle 3, अब एंगल 3 जो होगा बेटा एंगल 1 का अपोजिट एंगल्स होगा। तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 1 इक्वल्स टू 108, है ना। यहां आप लिख दीजिए अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू 72 डिग्री एंड यहां भी यही लिखना है अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। मैंने यहां शॉर्ट में लिखा था, वहां पूरा लिख दिया, बस हो गया। Next question is question number 6. Two adjacent angles of a parallelogram have equal measure. Find the measure of each of the angles of a parallelogram. देखिए, two adjacent angles का मेजरमेंट इक्वल, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, डायग्राम हमारा दिस टाइम इस तरह का हो, ये, और दिस एंड दिस आर इक्वल एंगल्स, मतलब हम इसको x ले लें तो ये भी x होगा, और अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, ये भी x होगा और ये भी x होगा। ठीक है, अब बहुत इजी है। क्वेश्चन है कि एडजेसेंट एंगल्स जो हैं वो इक्वल है, और हमारे रूल के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो यहां लिखेंगे लेट equal adjacent angles are x and x. X plus x equals to 180. Yes, adjacent angles of parallelogram are supplementary. ठीक है बेटा, and we may write here 2x equals to 180 and x equals to 180 upon 2, then x equals to 90 degree. तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बेटा, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, सारे एंगल का मेजरमेंट। तो x सब x है यहां, देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल is equals to 90 degree. Finish. Yes, next question is question number 7. The adjacent figure HOPE, बुक में इस क्वेश्चन में डायग्राम दिया हुआ है, एक पैरेललोग्राम है। HOPE is a parallelogram. Find the angle measure x, y and z. State the properties you use to find them. तो हम लोग तो प्रॉपर्टी सब में लिखते हैं बेटा, इसने कहा है प्रॉपर्टीज लिखो, और हम तो सब में लिखते ही हैं हम लोग, और लिखना भी चाहिए। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, अभी पहले तो मैं बता दूं कि दिस मींस एंगल x एंड एंगल दिस 70, ये 40 प्लस z और 70 इक्वल होगा। रीजन बिहाइंड इट, दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो करस्पॉन्डिंग एंगल है बेटा, तो इसलिए वह इक्वल होगा। तो हम लिख देंगे यहां 40 plus z equals to 70,
in bracket corresponding angles, and z equals to 70 minus 40, z इक्वल्स टू, तो z की वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, अब देखिए दिस एंड दिस आर पैरेलल लाइंस, दिस इज बिकॉज ये पैरेलल क्यों है, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, एंड दिस इज अ ट्रांसवर्सल, देन y इक्वल्स टू 40, y इक्वल्स टू 40 क्यों होगा बेटा, क्योंकि वह ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, y इक्वल ऐसा है, दिस और एक ऐसे हमने ड्रॉ किया, दिस एंड दिस आर इक्वल एंगल्स बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स formed by two parallel lines on a transverse. Okay, so यहां हम लिख देंगे y equals to 40, in bracket you will write alternate interior angles, alternate interior angles. नेक्स्ट, अब हमें x की वैल्यू फाइंड करने की है। ठीक है, x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे बेटा, एंगल E and angle H are adjacent angles of parallelogram and they are supplementary according to the properties of parallelogram. So you will write here z plus 40 plus x equals to 180. Here you will write adjacent angles of parallelogram are supplementary. Now z की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, वो है 30, तो 30 प्लस 40 प्लस x इक्वल्स टू 180, 70 प्लस x इक्वल्स टू 180, x equals to 180 minus 70, x equals to 110. ओके, सो x की वैल्यू भी मिल गई हमें 110 डिग्री, y की वैल्यू भी मिल चुकी है 40 डिग्री और z की वैल्यू भी मिल चुकी है 30 डिग्री। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग फिगर गन्स GUNS एंड RUNS, RUNS सेकंड क्वेश्चन में है बेटा, अभी हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। GUNS are parallelograms, find x and y. Here it is x and it is y, and we have to find out the value of x and value of y. How you will get? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज फिर से हम रिकॉल कर रहे हैं। बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मींस दिस एंड दिस आर इक्वल, दिस एंड दिस आर इक्वल, सो वी कैन राइट GU is equals to SN. Here you will write opposite sides of parallelogram. GU is here 3y minus 1 and that is equals to 26. Here 3y equals to 26 plus 1 and y equals to 27 upon 3 and then y equals to 9. Finish. We got the value of x, sorry, value of y. अब x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो हमने दिस इक्वल्स टू दिस लिखना है, फिर से वही रीजन है, सो यू विल राइट GS is equals to UN. Reason behind it again, opposite sides of parallelogram. And here we can write 3x equals to 18 and here x equals to 18 divided by 3 and x equals to 6. Finish. We got the value of x here 6
and value of y here 9. Question is, this is second of 8. इसमें जो पैरेललोग्राम है बेटा RUNS, और आप इसमें भी हमें x और y की ही वैल्यू फाइंड करने की। तो हम लोग x y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? इसमें हम लोग फिर से प्रॉपर्टीज को रिकॉल करेंगे। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, बोथ द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मींस this is bisected by this and this is bisected by this, and so you may say this is the midpoint of both the diagonals. There are two diagonals here, RN and SU, दो डायगोनल है हमारे पास इस पैरेललोग्राम में। उसमें ये जो होगा बेटा वह मिड पॉइंट होगा दोनों डायगोनल के, मतलब SU का भी मिड पॉइंट होगा और NR का भी मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो NR का मिड पॉइंट भी यही होगा और SU का भी मिड पॉइंट यही होगा। फिनिश। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर मिड पॉइंट है इसका मतलब दिस एंड दिस आर इक्वल एंड दिस एंड दिस आर इक्वल। सो पहले ही यहां लिख देते हैं, सिंस बोथ द डायगोनल्स in parallelogram bisect each other, therefore y plus 7 is equals to 20, and that is y equals to 20 minus 7 and y equals to 30. एंड ये दोनों होता है, दोनों पॉसिबिलिटी है कि अगर दोनों डायगोनल, बोथ द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तो दोनों बात है बेटा y plus 7 equals to 20 and x plus y equals to 16 also. So and x plus y equals to 16, and that is x, value of y we know, so that is 13 equals to 16, and x equals to 16 minus 13 and x equals to 3. सो फिर से हमें x और y की वैल्यू मिल गई है, x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 13। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 9 is now, this is a figure and question is, in the above figure both RISK and CLUE are parallelograms. Find the value of x. Means RISK, this is a parallelogram, and CLUE, this is also a parallelogram. There are two parallelograms and x is here. This is x. Your question is asking find the value of x. Okay, so see beta, if CLUE is a parallelogram, then angle L, which is 70 degree, opposite angles are equal, so it must be 70 degree. Okay, and this angle is given 120 degree, angle K is given in parallelogram RISK. Angle K is 120 degree, and we know adjacent angles of parallelogram are supplementary, so this and this angle would be 180 degree, as they are supplementary angles because they are adjacent angles. So this would be 180 minus 20, that is 60. यहां मैं 60 लिख देता हूं, ये लगा हुआ है एरो, इससे मत ये समझना, ये एंगल मत समझ लेना बेटा 60 डिग्री, दिस इज 60. नाउ नेमिंग कर देते हैं बेटा, इसको P लिख देते हैं, P. तो EPS, in triangle EPS, 70 plus 60 plus x is 180 degree by ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी, और इस तरह से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. सो stay here, since RISK is a parallelogram, therefore
एंगल के प्लस एंगल के एस आई या आई एस के, ऐसा लिख सकते हैं, आई एस के इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन adjacent angles of parallelogram. Angle K is given 120 degree plus ISK equals to 180 and angle ISK is equals to 180 minus 120. Angle ISK equals to 60 degree. ओके, तो ये एंगल हमारे पास हो गया 60 डिग्री। अब हम लिखेंगे सिंस CLUE is a parallelogram, therefore angle L is equals to angle CES. Angle L equals to ये एक L, ये दो L दिख रहा है बेटा, एक एंगल की साइन है और एक L है। एंगल L is equals to angle CEU, and that is 70 degree. Opposite angles of parallelogram. ओके, और तब हम लिखेंगे, यहां हमने P लिख दिया है, तो इन ट्राइंगल ESP एंगल, इसका नाम हमने दिया था बेटा उस समय क्या, CEU दिया है, CEU, और इसका नाम दिया था ISK, तो वही हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ESP एंगल ISK प्लस एंगल CEU प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहां लिखेंगे ASP ऑफ ट्राइंगल, एंड नाउ ISK हम लोगों को मिला था 60 डिग्री, so 60 CEU we got is 70 degree and plus x equals to 180, and therefore x directly we are writing x equals to 130 plus x equals to 180। यहां करते हैं हम लोग, हमारे पास है थोड़ी सी जगह, x equals to 180 minus 130 and then x equals to 50. Finish. Question number 10. Explain how this figure is a trapezium. Which of its two sides are parallel? See बेटा, ये ट्रेपेजियम है एक्चुअली, बट आपका क्वेश्चन कह रहा है कि कैसे ये ट्रेपेजियम है, ये बताएं। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हमें बताना होगा कि इसके वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल। ट्रेपेजियम का जो हमने प्रॉपर्टी बताया था, उसमें बताया था वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो यहाँ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स हमने पैरेलल बताना है। सर्टेनली दिस एंड दिस आर पैरेलल साइड, बट हाउ?
कैसे है ये हमने बताना। उसके लिए देखिए, दिस एंड दिस आर टू साइड्स या टू लाइंस, दिस इज अ ट्रांसवर्सल। अगर ऐसा है तो ये जो दो एंगल बने हैं, ये दो एंगल 100 और 80, ये हम लिखेंगे 100 मीन्स मेजरमेंट ऑफ एंगल M प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल L इज इक्वल टू 100 plus 80 and that is 180. Okay, but these two angles are on lines MN and KL. On lines MN and KL are on lines MN and KL formed by transversal ML। मतलब ये दोनों एंगल जो है, यहां एक लाइन और लिख देते हैं, देयरफॉर एंगल M and एंगल N are supplementary। सप्लीमेंट्री ट्रांसवर्सल यहां लिखा हमने ML और देयरफॉर दे आर को इंटीरियर एंगल्स। मतलब यह हमने बताया था, दो लाइन को पैरेलल होने के लिए को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होने चाहिए। तो आपको याद होगा बेटा, इस तरह की लाइन ऐसा है तो दिस एंड दिस आर को इंटीरियर एंगल्स एंड इफ दे आर सप्लीमेंट्री, देखो ऐसा है, मान लो दो लाइन ऐसा है तो ये तब भी को इंटीरियर एंगल्स ही होगा, बट इस टाइम ये सप्लीमेंट्री नहीं होगा, ये दोनों एंगल का सम मोर देन 180 होगा और इसीलिए हम कहेंगे ये लाइन पैरेलल नहीं है। बट हियर वी आर गेटिंग सम ऑफ दीज टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सम ऑफ these two angles supplementary, and so we can say these two angles are co-interior angles और co-interior angles है, therefore ये लाइन पैरेलल। तो सिंपल लॉजिक, को इंटीरियर एंगल्स उस एंगल को कहते हैं जो दो लाइन पे बनते हैं एक ट्रांसवर्सल के द्वारा और दोनों अंदर का एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल एट द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल को हम को इंटीरियर एंगल्स कहते हैं बेटा। तो ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स हुआ, दोनों सप्लीमेंट्री है, इसका मतलब लाइन पैरेलल है। हो गया। Therefore MN is parallel to KL। ओके, तो पूछ रहा था कि क्यों ये पैरेललोग्राम है, तो क्योंकि MN और KL पैरेलल है, therefore KLMN is a trapezium। Finish। Question is here, question number 11. Find measurement of angle C if in figure 3.33 if AB is parallel to CD। ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ बेटा कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल है तो याद रखिए ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं और दोनों सप्लीमेंट्री होने चाहिए अगर पैरेलल है तो। इफ पैरेलल then they are supplementary, if they are supplementary they are parallel, vice versa।
मतलब अगर लिखा हुआ है दिस एंड दिस आर पैरेलल तो आप बोलोगे दिस एंड दिस मस्ट बी सप्लीमेंट्री, या लिखा हुआ है दिस एंड दिस आर सप्लीमेंट्री, आप बोलोगे दिस एंड दिस मस्ट बी पैरेलल। तो पहले क्वेश्चन में क्या था बेटा, ये दोनों एंगल का मेजरमेंट दिया हुआ था 80 एंड 120, आई थिंक इट वाज, नो इट वाज 100 एंड इट इज 80, इट वाज 100 एंड इट इज 100। तो दोनों को मिला के हमने बताया कि दोनों सप्लीमेंट्री है और दोनों कोइंटीरियर एंगल्स है, इसीलिए लाइन पैरेलल है। बट यहां हमने बताना है कि ये एंगल का मेजरमेंट क्या होगा। तो हम जानते हैं अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये दोनों सप्लीमेंट्री होगा। तो आप लिखोगे सिंस AB इज पैरेलल टू CD, therefore एंगल C प्लस B इक्वल्स टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिखेंगे को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है बेटा, and therefore we can write angle B is given angle C plus 120 equals to 180, angle C equals to 180 minus 120, angle C equals to 60 डिग्री। हो गया, यही आपका क्वेश्चन पूछा। सो एंगल C equals to 60। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, find the measure of angle P and angle S। एंगल P और एंगल S की हमने वैल्यू फाइंड करने की है। एंड गिवन आर if SP is parallel to RQ means this and this are parallel। अगर ये दोनों पैरेलल है तो आप अच्छी तरह जानते हो बेटा कि ये और ये एंगल मींस Q एंड P सप्लीमेंट्री होंगे बिकॉज दे आर को इंटीरियर एंगल्स। एंगल S एंड एंगल R सप्लीमेंट्री होंगे बिकॉज दे आर को इंटीरियर एंगल्स। तो दिस एंड दिस आर को इंटीरियर एंगल्स, दिस एंड दिस आर को इंटीरियर एंगल्स। तो लिखेंगे यहां सिंस SP इज पैरेलल टू SP is parallel to RQ, this is given in the question, therefore angle S plus angle R equals to 180। यहां लिखेंगे को इंटीरियर एंगल, और आर की वैल्यू, एंगल आर की वैल्यू दी हुई, लिखा हुआ कुछ नहीं है बट ये साइन का मतलब है बेटा कि आर 90 डिग्री का एंगल। तो एंगल एस प्लस 90 इक्वल्स टू 180, एंगल एस इक्वल्स टू 180 माइनस 90 एंड एंगल एस इक्वल्स टू 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल P प्लस Q इक्वल्स टू 180। यहां भी रीजन वही को इंटीरियर एंगल। एंगल P we have to got एंगल P, Q की तो वैल्यू दी हुई है, this is 130 equals to 180, angle P equals to 180 minus 130, angle P equals to 50 degree. So we got angle P equals to 50 degree and angle S equals to 90 degree. Okay, if you find measure angle R, is there more than one method to find measure angle P? अब कहा कि if you find measurement of angle R, मतलब ये एंगल आपको मालूम है
तो कोई और मेथड है आपके पास ये जानने के लिए, इसको एंगल पी को फाइंड करने के लिए? यस, एक और मेथड है हमारे पास। वो कौन सा मेथड है? अगर ये आर है तो ये तो, सॉरी, ये एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, बिकॉज दे आर कोइंटीरियर एंगल। तो ये दोनों मिल गया। अब ये एंगल फाइंड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? मेजरमेंट ऑफ एंगल P प्लस Q प्लस R प्लस X इक्वल्स टू 360, बिकॉज सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। इस मेथड से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां लिख देते हैं, टू फाइंड measurement of angle P, other method is measurement of angle P plus Q plus R plus S is equals to 360 degree by ASP of quadrilateral, and therefore we can write measurement of angle P equals to 360 minus angle Q प्लस एंगल R प्लस एंगल X। तो इस मेथड को अप्लाई करके भी हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। फिनिश।